ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 3:40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ 6 ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 3:40 ਤੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਰਸ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। फिलहाल गुलवंत ठाकुर सारे सहयोगी शिमला तो जुड़े ने। तो गुलवंत, आज की सुबह कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए और कांग्रेस के लिए बेहद एक जो सोग के साथ आई हुई सुबह है, क्योंकि वीरभद्र सिंह का देहांत हो गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये हिमाचल के लिए बहुत ही दुखद घटना है। एक कद्दावर जो नेता हैं उनका गंभीर बीमारी के बाद आईजीएमसी में सुबह ही 3:40 पर देहांत, अंतिम सांस ली है उन्होंने। इसकी पुष्टि आईजीएमसी के MS डॉक्टर जनकराज ने की है। फिलहाल अभी उनका पार्थिव शरीर आईजीएमसी कॉलेज के बाहर रखा गया है। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके निजी आवास पर इंदौर ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और बता दें कि वीरभद्र सिंह 30 अप्रैल से आईजीएमसी में भर्ती थे और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर पिछले 2 दिनों में रखा गया था। और आज सुबह ही 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी बिल्कुल गुलवंत, तो क्योंकि काफी समय से बीमार थे, हालांकि एक बार कोरोना को उन्होंने मात दे दी थी, जो स्वस्थ होकर वो घर वापस आ गए थे, लेकिन उनकी देखरेख कर रही नर्स ही पॉजिटिव आ जाती है। यानी कि सीधे तौर पर कोरोना का खतरा उन पर जो पिछले समय से था वो लगातार मंडरा रहा था। इसके कारण कह रहे थे कि तबीयत उनकी जो है वो काफी नासाज रहती थी, कमजोर भी वो काफी हो चुके हैं। जो हमने उनकी आखिरी तस्वीरें देखी हैं उनमें वो नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल दे 6 वार मुख मंत्री रहे ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3:40 ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। रणबीर साढ़े सहयोगी शिमला तो जुड़े हुए ने। तो रणबीर, लगातार हालांकि डॉक्टरों की टीम उनका ध्यान रख रही थी, कोशिश की जा रही थी उनको स्वस्थ करने की, लेकिन आखिरकार आज की सुबह हिमाचल के लिए, कांग्रेस के लिए एक दुखद सुबह बन के आई है। देखिए, बहुत दुखद खबर है पूरे हिमाचल के लिए। हालांकि लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि पिछले कल शाम को भी जिस तरह का जो है अपडेट आया था आईजीएमसी प्रशासन से, ये जानकारी दी गई थी कि वो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं।
तो सांस में तकलीफ उनकी बढ़ गई थी। सोमवार की सुबह उन्हें ये बताया गया कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जो है मिलने पहुंचे थे, उस वक्त से जो है लोग जो है काफी डरे हुए थे। उनकी जो हालत थी काफी चिंताजनक बनी हुई थी और आखिर ये घड़ी यहाँ पर आ गई जब उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर ली है। तो बहुत बड़ी क्षति है ये हिमाचल के लिए। इतने बड़े कद का नेता शायद ही हिमाचल में कोई अब देखने को मिलेगा और जो उनका कद था, जो व्यक्तित्व था, उसके आगे जो है कोई ठहर नहीं पाता है। क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। अभी की जो अपडेट ये है कि अभी उनके शव को जो है मेडिकल कॉलेज लाया गया है आईजीएमसी और यहाँ पर अभी जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। ये जानकारी मिली है, उनके परिवार के कुछ करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि आज जो है अंतिम दर्शनों के लिए वो रखा जाएगा। जगह जगह पर जो है उनके शव को जो है अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि उनका अंतिम संस्कार जो है उनके जो पैतृक स्थान है रामपुर, वहां पर जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कुल मिलाकर अभी की जो ये स्थिति है ये बेहद ही हिमाचल के लिहाज से न केवल बल्कि यूं कहें कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नेता जो है यहाँ पर उसने अंतिम विदाई ली है। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो जाहिर सी बात है जैसे आपने जिक्र किया कि इतने बड़े कद वाला शायद ही अब दोबारा से हिमाचल को या कांग्रेस को कोई नेता मिल सकता है। ये कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का ही एक कह सकते हैं कि उनकी छवि ऐसी है कि कांग्रेस में तो उनका बड़ा नाम है ही, लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो भी आज उनका इतना ही सम्मान करते हैं। इसीलिए तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर आते हैं तो वो उनका हाल जानना नहीं भूलते। और यहाँ अगर बात की जाए तो जयराम ठाकुर समय समय पर हाल जानते हैं उनका। तो रणबीर, आप बने रहे हमारे साथ। फिर से आपका रुख करते हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ आशा कुमारी जुड़ गई हैं। तो आशा कुमारी जी, आज एक साथी कह सकते हैं जो आपके बहुत सीनियर रहे हैं, 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, आज साथ छोड़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए, आप सब लोगों के लिए ये बेहद दुखद घटना। देखिए, बात ये है कि वो हम उनको अपना साथी कहे, ये हमारा वो नहीं है जी। मैं तो उनको अपने पिता के समान देखती थी। बचपन से, मैं जिस दिन से पैदा हुई वो मेरे मौसा थे और मैंने कभी उनको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा। हमेशा एक पिता की तरह उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। ये तो किस्मत की बात है कि मैं भी विधायक बन गई और उनके साथ वर्षों तक विधायक रह के, मंत्री रह के काम करने का मौका मिला। पर मेरे वो रिश्ता मुझे आज नहीं याद आ रहा है। आज तो सिर्फ जो एक मेरे पिता का रिश्ता था उसको याद करके बहुत दुख, मेरे पास शब्द ही नहीं है जी कि मैं बोल सकूं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। राजनीतिक जगत को नुकसान जो हुआ है वो अपनी जगह है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राजनीतिक हमारे बीच से चला गया, वो अपनी जगह है। लेकिन एक बेटी अपने बाप को जब खोती है वो निशब्द करने वाला। आशा कुमारी जी, जाहिर सी बात है कि बेहद भावुक पल हैं आपके लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि हमने कभी उनको एक सियासतदान के रूप में नहीं देखा है, क्योंकि उम्र का बहुत फर्क है और एक तजुर्बा उनका बहुत ज्यादा है। तो जैसे आपने कहा कि आज एक बेटी ने बाप को खोया है, तो वो समझ सकते हैं हम कि आज कैसा आप पर बीत रहा होगा। क्योंकि उनकी छवि की अगर बात की जाए आशा कुमारी जी, तो सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से हिमाचल के ऐसे लोग भी हैं कि उनको सियासतदान समझते ही नहीं थे, क्योंकि इसीलिए थे कि वो 6 बार मुख्यमंत्री बने और सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। जी देखिए, वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने हिमाचल के लोगों को जनता नहीं समझा, अपना परिवार समझा। कितने लोगों की, अनेक लोगों की दुआएं उनके साथ रही जी। आज शब्द नहीं है हिमाचल के लोगों के पास। इस
कोई कांग्रेस या बीजेपी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है जी। आज हर हिमाचली रो रहा है जी। हर तो आशा हिमाचली कुमारी को जी, आपकी नुकसान है। आखिरी वक्त उनसे बात कब हुई थी? जब आपने हालचाल जाना हो तो क्या बात हुई, कैसी तबीयत बताई जा रही थी उनकी? नहीं, देखिए उनकी, मैंने आपको बताया वो मेरे सक्के मौसा थे जी। मेरी मदर की छोटी बहन उनकी पहली पत्नी थी और जो प्रतिभा सिंह जी हैं वो भी मेरी कजन है जी। तो उनसे और परिवार से तो मेरी रोज ही बात होती है जी। उनसे तो बात हुए बहुत समय इसलिए हो गया क्योंकि जब से वो हॉस्पिटलाइज थे हाँ। उनसे मिलना संभव नहीं था तो परिवार से ही बात होती रही जी। उनकी पत्नी से और बच्चों से जो कि मेरे भाई बहन है। जी। जी। तो रोज ही बात होती है। विक्रमादित्य से भी कल शाम को भी बात हुई और जैसे ही उनका निधन हुआ तो निश्चित तौर पे परिवार में आपस में बातचीत हुई। जी। सुबह 4 बजे भी विक्रमादित्य से मेरी बात हुई। अभिलाषा जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है, मेरी कजन है, जी। जी। उनसे भी सुबह 4 बजे बात हुई। जी। तो बात की नहीं है। सब इस बात को जान रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है लेकिन वो एकदम से अचानक ऐसे चले जाएंगे जी। ये अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाए। बिल्कुल आशा कुमारी जी, क्योंकि अगर विल पावर की बात की जाए तो एक बार कोरोना को वो मात दे चुके थे, वापस आए, स्वस्थ हुए, तो शायद किसी ने अंदाजा तो वाकई में नहीं लगाया था कि एक बार इतनी बड़ी महामारी को मात देने वाला इतना दिग्गज, इतना मजबूत जो नेता है वो ऐसे अचानक सबका साथ छोड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है भावुक पल आपके लिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। शुक्रिया आशा कुमारी जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ तमाम जेकर सियासी पार्टियां की गल की जाए, बीजेपी की गल की जाए या हिमाचल के हर एक लोगों की गल की जाए तो अज हर कोई दुखी है क्योंकि जदों कोई 6 बार मुख्यमंत्री रहिंदा है तो किस तरीके की उसकी दिख होगी, किन्ना जो लोग उसनूं चाहुंदे होणगे, किन्ना लोगों के विच आधार उस सियासतदान का होगा, ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सियासत दे विच जेकर रिपीट हो जाए दूसरी बारी तो उसनूं बड़ी वड्डी गल कहा जाता है, पर 6 बार मुख्यमंत्री रहना अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी गल हुंदी है कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे ने हिमाचल दे, वीरभद्र 9 बार विधायक रहे ने, 5 बार सांसद रहे ने, यानी कि सियासत दे विच एक लंबा तजुर्बा उन्हां दा। 87 साल की उम्र दे विच उन्हां ने ਜਿਹੜੇ आखिरी साल लए ने पर उस तो पहला लगातार सियासत दे विच सरगर्म रहे ने। हालांकि पिछले कुछ महीनों तो जो लगातार विगड़ती हुई सेहत ने उन्हां नूं इजाजत नहीं दी कि वो सियासी सरगर्मियां दे विच शामिल हो सकन, पर उन्हां दे परिवार वालियां दी गल कीती जावे, उन्हां दे बेटे दी गल कीती जावे तो वो भी सियासत दे विच काफ़ी एक्टिव ने, विक्रमादित्य सिंह। पर फिलहाल अज जो हिमाचल दे लई बेहद एक दुखद घटना है, हर कोई जो है वो दुख का प्रगटावा कर रहा है। कांग्रेस तो लैके बीजेपी के जो दिग्गज नेता ने उन्हां दे वल्लों अज अपने दुख का प्रगटावा किया जा रहा है क्योंकि एक वड्डा चेहरा, एक वड्डा नाम हिमाचल की सियासत दे विच खास तौर पर कांग्रेस के लिए एक वड्डा झटका कह सकते हैं कि जो वीरभद्र सिंह ने वो इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए ने। लगातार तबीयत उन्हां दी विगड़ रही सी पर IGMC दे विच उन्हां दा इलाज चल रहा सी, वेंटीलेटर ते सी। वेंटीलेटर ते जदों वो गए तो हालांकि उस वेले अंदाज़ा तो सी कि उन्हां दी सेहत जो है वो ज़्यादा खराब है तो शायद जो है समा ज़्यादा लग जाए या फिर इस तरह की खबर आ जाए, पर अचानक इन्नी जल्दी ये खबर आएगी वो शायद अजे ना परिवार वालियां ने सोचा सी ना हिमाचल के लोगों ने सोचा सी। विचित्र साडे सहयोगी जुड़े ने, सीधा रुख करते हैं। तो विचित्र आज हिमाचल के लिए, कांग्रेस के लिए या हम कह सकते हैं कि तमाम सियासी गलियारों के लिए ये एक दुखद घटना है कि 6 बार
मुख्यमंत्री रहे, लोगों के लोकप्रिय 9 बार विधायक रहे, सियासत में एक लंबी पारी खेलने वाले वीरभद्र सिंह आज अलविदा कह गए हैं। अमृत, देखिए, बिल्कुल ये आज के दिन जैसा मंदभागा दिन नहीं हो सकता है हिमाचल प्रदेश की लिहाज से, इसलिए क्योंकि जो वीरभद्र सिंह का जाना अपने आप में, जैसा कि आपने पूरी तरह से भूमिका बांधी है, जैसा कहा है आपने कि किस तरह से उनका एक सियासी कद रहा है हिमाचल प्रदेश में, बावजूद इसके अगर दूसरे नजरिए से भी देखा जाए तो वीरभद्र सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हिमाचल के निर्माता माने जाते हैं, उनके बाद अगर कोई नेता हिमाचल प्रदेश की आत्मा में वास कर पाया है, हिमाचल प्रदेश की जनता में सचमुच में राज कर पाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वीरभद्र सिंह ही थे। वो ऐसा कोई इलाका नहीं होगा, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी जिसका कोई दुर्गम इलाका नहीं होगा, जिसका कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसका कोई नाम हो और वो वहां ना पहुंचे हो, ऐसा कोई जोत नहीं होगा जहां वो ना पहुंचे हों। उनका एक अपना ही अलग रुतबा था, अपना ही एक अलग औरा था। इनफैक्ट धुर विरोधियों में भी उनका एक अपना ही वजूद था, एक वजूद था। धुर विरोधी जो है उनसे दांव सीखते थे सियासत के। बहुत से ऐसे भी उनके धुर विरोधी रहे हैं जो कि उनसे एक तरह से उनको अपना गुरु मानते थे, इसलिए क्योंकि उनके पास जो चालें थी वो शायद आज भी किसी नेता के पास उस तरह की सियासी चालें ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो अमृत मैं आपको ये बताऊं कि आजादी से पहले जब रामपुर रियासत हुआ करती थी तो कहते हैं कि अंतिम राजा जो है वो वीरभद्र सिंह ही थे, उनका राज तिलक बकायदा हुआ था। और उसके तुरंत बाद जो है वो वीरभद्र सिंह की ओर से जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है फिर विलय कर लिया गया था और हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रदेश के तौर पर अस्तित्व में आया था। उन्होंने रामलाल ठाकुर जो उस वक्त के उनके जो राइवल थे उनको जो है वो हटाकर मुख्यमंत्री बने थे, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार। तो ऐसे जो उनके दिग्गज नेता रहे हैं उनके बीच में उन्होंने सियासत की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जून में ही हाल ही में जो है उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था और उन लोगों के बीच में जिस तरह से शांता कुमार का जन्मदिन भी अभी आता है, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन भी, वो समकक्ष थे। उनकी तमाम ये जो बड़ी हस्तियां हैं इनकी जो आयु थी वो एक बराबर थी और हाँ कोई नहीं सोच सकता था कि अभी इतनी जल्दी जो है वो वीरभद्र सिंह इस दुनिया से जो रुखसत कर जाएंगे। और आज पूरा समूचा प्रदेश, पूरा सूबा जो है वो गमगीन है और उनको अपना राजा मानती थी यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ की जो जनता है। और तो बार बार यही हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हिमाचल के लोगों के लिए, तमाम सियासी पार्टियों के लिए ये बेहद दुखद घटना है। विचित्र, आप बने रहे हमारे साथ, फिर से आपका रुख करते हैं। फिलहाल हमारे साथ हिमाचल के जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो जुड़ चुके हैं। तो मुकेश जी, आज बेहद दुखद घटना है, ये शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं क्योंकि जब वीरभद्र सिंह का नाम आता है तो उनका कद ही ऐसा है कि उनके लिए ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो नाम ही काफी है जी। तो आज वो रुखसत हो गए हैं इस संसार से, तो जाहिर सी बात है आज पूरे हिमाचल के लिए ये काफी दुखद घटना है। बिल्कुल एक युग का अंत हुआ है और हिमाचल की राजनीति पे लगभग पिछले 6 दशक से उनका साम्राज्य चल रहा था जी। और वो हिमाचल प्रदेश के 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और राजयोग जो है अंत तक उनके उसमें था। आज भी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सिटिंग सदस्य थे जी जी और आधुनिक हिमाचल के निर्माता हैं। हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे पे जो भी वो नजर आता है, विकास पुरुष थे कि उनका विजन जो था हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का, तो बहुत बड़ा काम हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने किया। और दरअसल वो अब किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो तो संपूर्ण हिमाचल में एक ऐसी मान्यता उनको प्राप्त हो चुकी थी जी कि सब जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उनका सम्मान करते थे जी। और ये पिछले कुछ समय से अप्रैल 13 के आसपास जी जी उनको चंडीगढ़ में मैक्स में एडमिट करवाया गया था। फिर
फिर उसके बाद जब वो स्वस्थ हुए तो वो शिमला गए, लेकिन तबीयत फिर नासाज हो गई। फिर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिल करवाया। ये अस्पताल उनके बहुत दिल के करीब रहा, इसका उन्होंने निर्माण बहुत शिद्दत से करवाया जी। और उसी अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक दिलों के राजा थे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम देखते थे कि जब भी जाते थे तो हिमाचल की बात आती थी तो साथ में वीरभद्र सिंह जी की बात भी जो है आती थी। जी जी। तो ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं रहा। कोई उनका जाना जो है हिमाचल प्रदेश के लिए तो बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। जी बिल्कुल मुकेश जी, क्योंकि इसीलिए बार बार जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो सिर्फ एक सियासतदान, एक पर्टिकुलर पार्टी से या कांग्रेस से संबंधित तो अब हम कह ही नहीं सकते। जैसे आपने कहा कि हिमाचल के चप्पे चप्पे पर उनकी छाप है। यही कारण है कि जब वीरभद्र सिंह का नाम आता था तो विपक्ष पहले भी जब वो जिंदा थे उसी सम्मान के साथ विपक्ष उनका नाम लेता था। बेशक मतभेद होते हैं सियासी पार्टियों में, लेकिन विपक्ष में भी उन्होंने अपना वैसा ही कद बनाकर रखा हुआ था। जी जी। शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हर कोई जो है, चाहे विरोधी पार्टियां ने तो सिर्फ ये गल नहीं है कि जो कोई चला जाता है तो उस वेले विरोधी पार्टियां दे वल्लों भी चंगे शब्द ही इस्तेमाल किए जाते हैं जाने वाले दे लई। पर वीरभद्र सिंह जिस वेले सरगर्म सी सियासत दे विच जिंदा सी, जिस वेले उस वेले भी जो विरोधी पार्टियां ने एक सत्कार जो उन्हों का जरूर करदियां सी। यही कारण है कि बीमार होने ते बार बार जो हिमाचल के मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्हों का हाल जानते सी, वड्डे जो सियासतदान सी बीजेपी के उन्हों का हाल जानते सी। विचित्र साढ़े सहयोगी लगातार जुड़े हुए ने, तो विचित्र बार बार जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अपने कद के कारण, अपनी छवि के कारण पूरे हिमाचल में, पूरे देश में अपनी ऐसी एक छवि बना ली थी वीरभद्र सिंह ने कि आज तो चलो उनके लिए जो कह सकते हैं कि सबके सुर नरम होंगे, लेकिन पहले भी बड़े सम्मान के साथ हर कोई उनका नाम लेता था, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी विपक्ष की बात की जाए। अमृत, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अभी जो सीएलपी के लीडर हैं मुकेश अग्निहोत्री जो कह रहे थे, जो बता रहे थे, वो तो इसलिए भी बता रहे थे क्योंकि उनके साथ उनको काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, उनके साथ रहे हैं, उनसे दांवपेच उन्होंने सियासत के सीखे हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनके एक तरह से उत्तराधिकारी भी बने, इस चेयर तक भी पहुंचे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी हम यानी निजी तौर पर भी कहें तो पूरे समूचे इस प्रदेश में, सूबे में वाकई में वो आधुनिक हिमाचल के निर्माता जो है वो माने जाते हैं। तीसरी लोकसभा से उनको चुना जा रहा था, साल 1962 से लेकर उनको तीसरी लोकसभा में चुना गया, उनको चौथी में, पांचवी में, फिर सातवीं में उनको चुना गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष रहे और सबसे बड़ी बात तो यह है अमृत की वो बहुत दूरदर्शी सोच के मालिक थे और कहते हैं कि वीरभद्र सिंह जहां खड़े हो जाते थे, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वहीं से सरकार जो है चलनी शुरू हो जाती थी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री रहे हों, ऐसा कभी भी देखा नहीं गया है कि जो वहां पर खड़ा, जहां खड़ा सरकार चलनी शुरू हो जाए। एक शांत स्वभाव के सियासतदान, एक शांत स्वभाव के सियासतदान होने के बावजूद इतना दूरगामी सोच रखने वाला जो 6 बार मुख्यमंत्री रहा हो, 9 बार विधायक, 5 बार सांसद, एक सियासत में लंबा चौड़ा उनका तजर्बा, तो जाहिर सी बात है कि बार बार जो जिक्र उनको लेकर आ रहा है वो होना लाजमी है। जीएस बाली फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो जीएस बाली जी, आज पूरी कांग्रेस के लिए, पूरे हिमाचल के लिए बेहद दुखद दिन है, वीरभद्र सिंह का जाना, जो आज जिसकी खबर सुबह सुबह सामने आई। जी नमस्कार जी। देखिए, इससे बड़ी दुख खबर पूरे देश के लिए है ये। वो सिर्फ हिमाचल के नेता नहीं थे जी, देश के बड़े नेता थे और 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री, सेंटर में मंत्री और जब यहाँ विधायक नहीं तो सेंटर में सांसद। ऐसा रिकॉर्ड शायद किसी का ही होगा राजनीति में जी। और सादे स्वभाव के, अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो बहुत ही अफेक्शनेट व्यक्ति, एबल एडमिनिस्ट्रेटर
और पार्टी के साथ बिल्कुल स्तंभ की तरह बने हुए। मेरे तकरीबन 45 साल की राजनीतिक और पारिवारिक रिश्ते उनके साथ जी थे। मैंने आज भी जब उनके बेटे से बात की तो हमने पुरानी बातें, हमारे हाथ में, मेरे अपने पर्सनल हाथ में उनकी माताजी का देहांत हुआ जी, और जिस तरह से माताजी का देहांत हुआ और राजा साहब मीरपुर में बाई इलेक्शन में लगे हुए थे, ये सारी बातें जो है उनकी कमिटमेंट पार्टी के प्रति, प्रदेश के प्रति और हिमाचल को मॉडर्नाइज करने के प्रति, ही वॉज टोटली कमिटेड पर्सन। और एक बड़े युग का अंत हुआ है पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे तो लॉस है ही, व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत बड़ा लॉस मुझे भी है और पूरे हिमाचल को है, पूरे देश को है। बिल्कुल। तो जीएस बाली जी अपने स्वभाव के कारण, अपनी दूरगामी सोच के कारण, अपने काम के कारण जिस तरीके से वीरभद्र सिंह को पूरे देश में जाना जाता है, यही कारण है कि सियासत के राजा तो वो रहे ही हैं, दिल के राजा भी उनको कहा जाता है। इसीलिए आज जाने के बाद भी उनको हर कोई अलविदा राजा साहब ही कह रहा है। जी, सिर्फ यही नहीं है, वो इतने मेहनती थे कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो छोटा सा टाइपराइटर अपने पास रखते थे और चिट्ठियां सुबह 4 बजे उठ करके अपने हाथ से टाइप करते थे, मुख्यमंत्री होते हुए भी, स्टाफ के होते हुए भी। तो जो काम उन्होंने करना था और हर चीज के लिए बहुत सेंसिटिव थे कि आप चल रहे हैं, हम दिल्ली से चले एक बार सुबह 4 बजे और रास्ते में उन्होंने मेरे से पूछा, यार हमने कमरे की लाइट बंद की कि नहीं की? मैंने कहा लाइट तो ऑन रह गई। तो मुझे कहते थे गाड़ी रोक करके कहीं से टेलीफोन करो उनको लाइट बंद करने के लिए। और उस वक्त हाथ के टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। हमने अम्बाड़ा में रुक करके PSO में जाकर के, पब्लिक बूथ में जाकर के टेलीफोन किया कि भैया राज साहब कह रहे हैं लाइटें बंद कराई कि नहीं कराई आप लोगों ने। तो ही वॉज ए वेरी सेंसिटिव एंड ए गुड पर्सन, मीनिंगफुल पर्सन। और ऐसे लोग व्यक्ति देखते तो जो है वो बड़े कम होते हैं दुनिया में। बहुत बड़ा नुकसान जो तो है वाकई में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और मिलने भी बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे कद्दावर नेता की अगर बात की जाए, या फिर व्यक्तिगत तौर पर जैसे आप उनके स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो वो अक्सर जीएस बाली जी उनका स्वभाव चर्चा में रहा है कि जैसे खुश मिजाज थे वो। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष से भी बड़ा हंस के मिलते थे, लोगों के बीच में जब जाते थे तो वो एक आम व्यक्ति के तौर पर जाते थे और फ्लेक्सिबल आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति जो था उनको अप्रोचेबल थे। वो कहीं भी जाकर के उनको मिल सकता था। तो उन्होंने वो जो अपने में क्वालिटी पाल रखी थी कि कहीं भी जाके, और मेहनती, इतने ज्यादा मेहनती आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितने मेहनती थे। अगर उन्होंने कह दिया कि मैंने 6 बजे प्रस्थान करना है तो 5:45 बजे तैयार होकर के बैठ जाएंगे। तो वो 5 मिनट का भी गैप नहीं देते थे। उनकी क्वालिटीज तो आज के बहुत कोई गिने चुने नेता होंगे जिनमें वो क्वालिटीज हैं, जिनमें वो काम करते थे। और वो उन्होंने पूरा प्रदेश जो है वो पैदल घूमा था और हर व्यक्ति को पर्सनली जानते थे, बाय नेम जानते थे। जो कार्यकर्ता थे उनको, उनकी पहचान रखते थे। अपोजिशन के साथ भी वो अपोजिशन के साथ भी मिलकर के काम कर लेते थे। और थोड़ा सा अगर उनकी एक खासियत थी, अगर हम लोगों ने, मैंने 2 बार उनकी कैबिनेट में उनके साथ रहा हूँ तकरीबन 10 वर्ष के लिए। तो कई बार ये होता था कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी है, मगर थोड़ी देर के बाद फिर बुला लेंगे कि आओ यार ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो मतलब उनके वो जो फ्लेक्सिबिलिटी और प्यार था, ये बैठेंगे कि कॉफी पी के नहीं पी, चलो कॉफी पीते हैं। तो मतलब वो चीजें जो है वो उन्होंने फादरली लव दिया बहुत सारे लोगों। बिल्कुल, यानी कि जमीन से जुड़े हुए और अपने साथ अपने साथियों को, चाहे वो जूनियर हो, उनसे कैसे जोड़ के रखना है। और जैसे हमने बताया कि अनुशासन बेहद उनको पसंद था और अनुशासन ही कामयाब की बड़ी सीढ़ी जो है वो मानी जाती है। इसीलिए आज वो इतने कामयाब थे कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है। शुक्रिया जीएस बाली जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। वीरभद्र सिंह ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਣਬੀਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ IGMC शिमला तो। रणबीर, फिलहाल अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? दुखद ये खबर जो है सुबह निकल कर आई है। इस वक्त हमारे साथ जो है वीरभद्र सिंह के परिवार के करीबी और कांग्रेस नेता हरीश चनार्था है, उनसे बात करते हैं। सर, रात को 3:40 पर ये दुखद खबर आई है, ज़रा बताएं अभी उन्हें आगे जो है अब जो रिचुअल्स होने हैं वो कैसे कैसे होने? अभी तो यहाँ पे IGMC में है और कुछ एक जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ होती है आफ्टर दैट वो अभी पूरी हो रही है और इसके बाद अभी इनको हम होली लॉज लेके जाएंगे और आज वहीं पे होली लॉज में होंगे और कल रामपुर के लिए प्रस्थान किया जाएगा और जो दाह संस्कार होगा वो रामपुर में ही होगा जी। बताएं, ये कल शाम को भी हमें जानकारी आई थी कि वेंटिलेटर पर थे वीरभद्र सिंह जी। तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं थी इनकी, पीछे काफ़ी रिकवर कर गए थे, तो 1-2 दिन से थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, पर अब अनफॉर्चुनेटली मतलब पूरी कोशिश की गई। हम धन्यवाद करना चाहते हैं IGMC का, मेडिकल स्टाफ का और सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने रात दिन राज साहब का ध्यान रखा और फाइनली कल रात को मतलब 3:40 पे आज सुबह वो नहीं रहे और वैसे 1-1.5 दिन से उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। आपका तो जैसे बचपन से लेकर सब कुछ आज तक वहीं बीता है, उनके साथ ही बीता है, तो किस तरह से याद करेंगे वीरभद्र सिंह को? हालांकि वीरभद्र सिंह अपने आप में एक विचार है जी। हमारे बुजुर्गों का और इनफैक्ट पूरे प्रदेश का जो एक मार्गदर्शन राज साहब ने किया था उस पे चलेंगे और एक युग की अंतिम ही हुई है, आज एक युग ख़त्म हुआ है उनके साथ साथ। तो हमारे को यही है कि अब जैसे भी है राज साहब जहाँ पे भी होंगे उनको उनकी आत्मा को शांति मिले और आगे हमारा सबका यही प्रयास होगा कि उनके दिए हुए मार्गदर्शनों पे हम चलेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अमृत, ये IGMC से जो है सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये वीरभद्र सिंह जी की बेटी है अभिलाषा, ये देखिए अब उन्हें जो है अंदर बुलाया गया है। जमावड़ा किस तरह से है यहाँ पर, माहौल पूरी तरह से गमगीन। जाहिर सी बात है, एक बड़े कद का नेता और सबका प्रिय और जिसे सही में कहा जाता है मास लीडर क्या होता है, वो वीरभद्र सिंह का नाम ही काफ़ी है। और यहाँ पर तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर है, नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, जो उनके स्टाफ के लोग हैं, हर कोई यहाँ पर जो है गमगीन नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ की जो अपडेट है, जैसे कि जानकारी उनके परिवार के करीबी ने हमें दी कि यहाँ पर अभी जो है अंदर जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए जो लेप किया जाता है अब वो किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से जो है उनके पार्थिव शरीर को उनका जो अपना निवास स्थान है यहाँ पर शिमला में होली लॉज, वहाँ ले जाया जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। वहाँ पर परिवार के लोग जो है तय करेंगे कि जाहिर सी बात है इतने बड़े कद के नेता थे तो उनके दर्शनों के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, ना केवल आम जनता आएगी, पार्टी के लोग आएंगे जी। तो संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उस हिसाब से हॉली लॉज में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, किसी और स्थानों पर रखा जाएगा। ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ से रामपुर उन्हें ले जाया जाएगा, शायद कल उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनका पैतृक स्थान है वहीं पर जो है उनका फ्यूनरल होगा, अंतिम संस्कार वहीं पर होगा। फिलहाल ये तमाम जो जमावड़ा आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, मीडिया का भारी जमावड़ा है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो लगातार अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। किस तरह से शोक संदेश जो है
पूरे न केवल राजनीतिक जगत से, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, देश के कोने कोने से जो है एक ये शोक संदेश जो है दिया जा रहा है। एक ऐसे कद का नेता जिसके बारे में जो है जितना कहा जाए फिलहाल वो कम है। कुछ शब्दों में, कुछ बातों में उन्हें बांधना बेहद मुश्किल है। और यहाँ पर जैसे कि उनके करीबियों ने बताया, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें जो बहुत सारे लोगों को जो है याद आएंगी। एक सही मायनों में स्टेट्समैन जिसे कहा जाता है। ये तस्वीरों में उनके परिवार के सदस्य नज़र आ रही है, उनकी बेटी अभिलाषा जो है नज़र आ रही है। बेहद गमगीन परिवार यहाँ पर। बिल्कुल रणबीर, तो जाहिर सी बात है कि ये पल बेहद भावुक कर देने वाले हैं, बेहद गमगीन पल है, ना सिर्फ परिवार वालों के लिए बल्कि तमाम जो लोग इस समय मौजूद हैं, उनको चाहने वाले या फिर जो भी उनके समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इस समय उनके लिए बेहद गमगीन माहौल है। ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कि अभी अस्पताल में ही है उनका शव, लेकिन उसके बावजूद बाहर जो है लोग जुटना शुरू हो गए हैं, उनके समर्थक हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई है तो हर कोई एक बार अंतिम दर्शन उनके जरूर करना चाहता है। तो ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम आपको, इन तस्वीरों में पारिवारिक सदस्य जो नजर आ रहे हैं वीरभद्र सिंह के, उनकी बेटी नजर आ रही है और उनके साथ काम करने वाले जो दिग्गज सीनियर नेता थे वो हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं और उनके समर्थक भी अब धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए हैं। आधे समर्थक यहाँ हैं तो आधे उनके घर के बाहर भी अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब अंतिम दर्शनों के लिए उनके शव को रखा जाएगा पहले और उसके बाद ही जो अंतिम रस्में हैं वो की जाएंगी। जैसे रणबीर ने बताया कि हो सकता है कि कल रामपुर जो है उनकी शव को लेकर जाया जाए और वहां पर अंतिम रस्में की जाएं। तो लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ਤਾਂ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 6 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। रणबीर साढ़े सहयोगी जुड़े ने। रणबीर, कुछ हलचल जो है वो हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बढ़नी शुरू हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शव को अब बाहर लाने की तैयारी की जा रही हो। जी हाँ, ऐसी ही तैयारी यहाँ पर नज़र आ रही है। जानकारी भी मिल रही है कि यहाँ से जो है अभी जो रसायनों का लेप होता है बॉडी पर, वो जो प्रक्रिया होती है, जो मेडिकल प्रोसीजर है, वो थोड़ी देर में जो है पूरा होगा और यहाँ से जो है उनके पार्थिव देह को बाहर लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो है काफ़ी जो जिस तरह से एक राजकीय सम्मान होता है उसके तहत ये सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी की जाती हैं। देखिए, अभी जिस तरह से हम पॉलिटिकल करियर की बात करें, मात्र जो है 25-26 साल की उम्र में पहली बार जो है वो सांसद बनना और उसके बाद केंद्र में मंत्री रहना, 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहना, तो अपने आप में ये बताता है कि ये शख्सियत कितनी बड़ी थी। और यहाँ पर अभी की एक और अपडेट आपको दे, यहाँ पर जो शिमला के एसपी हैं मोहित चावला, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे तस्वीरों में। आईजीएमसी के जो एमएस हैं डॉक्टर जनक राज, वो भी यहाँ पर अभी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में जो है उनकी देह को जो है बाहर लाया जाएगा और वो जो तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़, वो यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर जानकारी ली जा रही है। जो आईजीएमसी के जो एमएस हैं डॉक्टर जनक राज, उनसे जो है पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अभी और कितना समय लगेगा ताकि आगे की तैयारी जो है किस तरह से
करनी है, यहाँ से जो है पार्थिव देह को आगे ले जाना है। जी हाँ अमृत, तो हम इनके राजनीतिक करियर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है 6 बार जो है मुख्यमंत्री रहना अपने आप में ये बताता है कि ये शख्सियत अपने आप में कितनी बड़ी है। हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के बड़े राजनीतिज्ञों के रूप में इन्हें जो है जाना जाता था। ये बेहद जो है भावुक करने वाला क्षण है और ये सीधी तस्वीरें यहाँ हम आईजीएमसी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये जो डायग्नोस्टिक बिल्कुल रणबीर, तो वाकई में ये भावुक कर देने वाला पल है हर किसी के लिए, चाहे वो आप हों या फिर उनके पारिवारिक सदस्य हों या फिर तमाम जो लोग इस समय वहां पर मौजूद हैं। क्योंकि जो सामने जब हम देखते हैं अपनी आंखों के इस सब माहौल को, तो जो बेहद है माहौल गमगीन होता है, तो उसमें खुद भी भावुक हो जाता है व्यक्ति। तो राजनीतिक करियर की उनकी बात कर रहे हैं, साथ साथ आपको बता रहे हैं कि कब से कब तक कहां के सांसद रहे, कहां पर वो मंत्री रहे, कहां पर इस समय मौजूदा वो विधायक हैं। और इसके साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो अभी की तस्वीरें आईजीएमसी से सामने आ रही हैं, जहां से अब उनके शव को निकालने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज हैं वो तकरीबन पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि सुबह 3:40 पर उनका देहांत हुआ था और उसके बाद से ही लगातार जो वहां पर हलचल बढ़ी हुई है। पारिवारिक सदस्य वहां पर पहुंचे हैं, उनकी बेटी पहुंची हुई है, उनके बेटे वहां पर हैं। तो अब कुछ ही पलों में उनका जो शव है वो बाहर लेकर आया जाएगा और उसके बाद उसको अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। तो जैसे रणबीर ने बताया कि आज सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि यहाँ पर विपक्ष के नेता जो पहुंचेंगे और इसके अलावा उनके समर्थक, जो सिर्फ कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं बल्कि हिमाचल की वो जनता है, आम से लेकर खास तक हर कोई वीरभद्र सिंह के जाने से आज दुखी है और उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है। इसीलिए उनकी जो शव है उसको अंतिम दर्शनों के लिए पहले रखा जाएगा, उसके बाद ही उनकी अंतिम रस्में जो हैं वो हो सकता है कि कल की